کامریڈ قاسم سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. کامریڈ قاسم صاحب. جتنے بھی غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور، جتنے بھی غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور، اتنے ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. جتنے بھی غریب کر ہیں اجالوں سے دور دور، جتنے بھی غریب کر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمت ہو کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں. انتہائی قابل احترام تمام کارکنان پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایس ایف، پی وائی او، اسٹیج پہ موجود تمام ہمارے مہمان ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہیں. اور اس بندہ ناچیز اور یونیورسٹی آف کوٹلی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ بندہ ناچیز آپ کو سلام پیش کرتا ہے. آج کا دن 19ویں صدی کا وہ دن جب معاشی اور صنعتی انقلاب آیا، تب دو طبقوں نے جنم لیا. ایک سرمایہ دار تو دوسرا مزدور تھا. سرمایہ دار نے فیکٹریاں لگائی تو مزدور اس میں رل گیا. مزدوروں سے 18 گھنٹے تک کام لیا جاتا تھے تو انسان مگر لیکن کام جانوروں کا سے لیا جاتا تھا. پھر وہ کسان جو فصل بوتے ہوئے کاٹتے ہوئے کبھی آر محسوس نہیں کرتا تھا، اس کے بچے اچھے کھانے کو ترس گئے. وہ لوگ جو فیکٹریوں میں کئی گز لاکھ کپڑے جو ترتیب دیتے تھے، کپڑا بناتے تھے، اس کی عورتیں اچھے لباس کو ترس گئی. آج وہ دن ہے جب سرمایہ داروں نے طاقت کے نشے میں آتے ہوئے جتنے بھی اپنے ٹاؤن تھے ان کو آگے کیا اور مزدور کسان پر جو نہتے گولیاں چلائی گئی. وہ کسان جو اپنے حق کے لیے نکلے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ بناؤ لیبر یونین بحال کرو، ہمیں ہمارا حق دو، اس ٹائم کے سرمایہ داروں نے ہمیشہ یہ کہا اپنے فیکٹری میں مزدور کام کرنے والوں کو، اگر یہ مر گیا تو خود اپنے خرچے پہ یہ دفن ہوگا، اگر یہ بیمار ہے تو خود اپنا خرچہ اٹھائے گا. تب ایک کورٹ بنی، اسپیشل کورٹ بنائی گئی ان مزدوروں کے لیے، جس میں اٹارنی جنرل نے یہ بات واضح کہی تھی اگر سماج بچانا ہے تو ان مزدوروں کو کچلنا پڑے گا. پھر وہ دن بھی آیا جب یہ مزدور سفید پرچم لے کر اپنے حق کے لیے نکلے. وہی سفید پرچم عالم دنیا میں اور تمام بڑی ریاستوں میں انقلاب کی نشانی بن کر، اتحاد کی نشانی بن کر ابھر کے سامنے آیا. تب اٹارنی جنرل کہ یہ افراد ان کو بڑے مایوب لگے کہ ہم تو چلے تھے ان کو کچلنے کے لیے، یہ تو سرخرو ہو کے نکلے ہیں. پھر اسی ایک سال کے بعد یہ تاریخ عالمی سطح پر اپنے عروج کو پہنچی. تب کسانوں، مزدوروں اور حالیوں کے لیے یہ ترتیبیں، یہ قانون پاس کیے گئے. مگر افسوس آج بھی اس ریاست ہو یا سلطنت خدا داد ہو، وہاں مزدوروں کی کبھی کوئی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ اس صورتحال میں جو موجودہ جا رہی ہے وہ مشکل اپنے گھر کا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں. انتہائی قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے تمام مہمان، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اس محفل کو زینت بخشی. این ایس صاحب، ایس ایل آر صاحب، شاہ صاحب اور طلباء تنظیم کے تمام کارکنان جنہوں نے اس میں حصہ لیا، ان کا میں بہت انتہائی دل سے مشکور ہوں. علم، حملہ شعور، جدوجہد ہمارا راستہ اور انشاءاللہ انقلاب ہماری منزل ہوگی. میں نظم کے لیے کامریڈ زین چودھری سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور وہ نظم پڑھیں. میں بالخصوص جو مزدور طبقہ ہے، پٹھان جو آئے یہاں سے خیبر پختونخوا والے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج مزدور ڈے کے موقع پر اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں. ٹکراؤ جب ملت کا خداؤں سے ہوا تھا، آغاز بغاوت کا میرے گاؤں سے ہوا تھا. اسلام کے مفتی یہ بات نہ بھولیں، انسان کا آغاز خطاؤں سے ہوا تھا. جو آج میری ہستی کو مٹانے پہ تلا ہے، وہ شخص جواں میری دعاؤں سے ہوا تھا. وسلام.
اب میں دعوت خطاب دوں گا سید شمس محی الدین قادری صاحب سے کہ اگر انہوں نے کہیں جانا ہے تو وہ آ کر اپنے خیرات کا اظہار کریں. میں مر کر بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزاج نہ پوچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر تقریب ٹھیکیدار انور صاحب، آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شوکت مغل صاحب، چودھری رشید صاحب، آج کی اس کی تقریب کے روح رواں ردیف بشیر صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی آن بان شان ملک مشتاق صاحب، سردار محمود صاحب، کامریڈ قاسم صاحب، اسامہ چودھری صاحب پی ایس ایف سے، باقی پنڈال میں بیٹھے ہوئے اگر نام لینا شروع کیا تو بڑی لمبی فہرست ہے. جی تو چاہتا ہے کہ ہر شخص کا نام لو، لیکن وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، اس لیے جس دوست کا نام نہ لے سکا اس سے معذرت چاہتا ہوں. میں 2-3 گزارشات کی کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کا یہ دن شکاگو کے ان مزدوروں کی یاد میں منایا جا رہا ہے جنہوں نے وہاں پہ قربانی دے کے آج مزدوروں کے لیے ان کے حقوق کے لیے ایک راہ متعین کی. اور آج سے پہلے جب آج سے 20 صدی پہلے کوئی قانون نہیں تھا، کوئی لا نہیں تھا، مزدور کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے، تو اس وقت شکاگو کے مزدور سفید پرچم لے کے نکلے. انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کے بعد قانون بنا اور مزدور کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا اعلان ہوا. ان کی اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو آج مزدور کو جو آسانیاں میسر ہیں وہ شاید نہ ہوتی. میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب بھی پاکستان میں اقتدار میں قدم رکھا تو انہوں نے سب سے پہلے جس بات پہ سب سے زیادہ توجہ دی ڈاکٹر صاحب، وہ جو بات تھی وہ یونین کی والی تھی، چاہے وہ مزدور یونین تھی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونین تھی، چاہے وہ وکلاء یونین تھی، چاہے وہ کسان یونین تھی. اس لیے میں آج اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اخراج تحسین نہ پیش کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. میں تمام دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی تقریب نہیں، یہ اجتماعی تقریب ہے، یہ مزدوروں کی تقریب ہے، یہ ہم سب پارٹیوں کی تقریب ہے، یہ ہم سب لوگوں کی تقریب ہے. ہم سب نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. ان مزدوروں کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے کرنا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی رہنمائی میں، باقی سینئر لوگوں کی رہنمائی میں کوشش کریں گے کہ جہاں بھی کسی مزدور کو، کسی کو، کسان کو کوئی مسئلہ ہو جو ہمارے وساط اور واقعات میں ہوا تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ پھر فور اس کو حل کریں. میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جیے بھٹو، جیے بے نظیر، جیے کشمیر، علم جدوجہد انقلاب. میں شعیب راجہ صاحب، سمیر چودھری صاحب، تاج سلطانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں دعوت خطاب دوں گا شبیر چودھری صاحب سے کہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہم محنت کش جب دنیا سے اپنا حصہ مانگیں گے، ایک کھیت نہیں، ایک دیش نہیں، ایک باغ نہیں، ہم پوری دنیا مانگیں گے. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے محنت کشوں کے حامی قائدین، پنڈال میں بیٹھے ہوئے محنت کش ساتھیوں، آج کا دن ایک خاص دن محنت کشوں کے حوالے سے. جب 1886 میں شکاگو کے ان شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے
जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और रियासती जबर बर्दाश्त किया, लेकिन झुके नहीं, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन वो पीछे हटे नहीं। और उस वक्त उनके सफेद जो कपड़े थे वो उनके खून में लुहान हो गए, और उनका जो खून से जो उनके कपड़े सुर्ख हुए, वही जो कपड़े हैं वही आज तक मेहनत कश की, मजदूर की और पिछे हुए तबकात की अलामत है। आज मैं समझता हूं कि मौजूदा सरमायादारी सिस्टम में सबसे ज्यादा जो मुतासर तबका है वो मेहनत कश है, वो गरीब है, वो पिछे हुए तबकात हैं, लेकिन उनका कोई परेशान हाल नहीं है। तमाम पार्टियां, बिलखुसूस हमें जो गिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जिसके मंशूर में ये लिखा गया है कि ये जो पार्टी है ये मेहनत कशों की पार्टी है, ये जो पार्टी है मजदूरों की पार्टी है, ये जो पार्टी है तुलबा और पिछे हुए तबकात की पार्टी है। लेकिन आज सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि जो पीछे पीछे हैं, जो शर्मिंदा है, वो जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अफसोस का मकाम है, उसको अपनी रवायत की तरफ वापस जाना चाहिए, उसको मेहनत कशों की तरफ वापस जाना चाहिए, ताकि मेहनत कश अपने साथ अटैच रवायत को बरकरार रखते हुए उसके साथ मुंसलिक होकर उसके साथ उम्मीदें वाबस्ता करें, और वो फिर मेहनत कशों के बारे में भी सोचे और मेहनत कशों के बारे में अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हालात उस नीच पे जा चुके हैं कि पीपल्स पार्टी क्या वो हाल नहीं है। हमें शिकवा है पीपल्स पार्टी से कि पीपल्स पार्टी में मफादाती टोला जो है वो हैवी है, और मेहनत कश और नजरियाती लोग जो भुट्टो के सिपाही हैं वो पीछे हैं। अभी मैं स्पेशली जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से बात नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे तमाम जमातों का, तमाम मेहनत कशों का एक इज्तिमा है। तो मैं समझता हूं कि अभी मेहनत कशों को सबसे ज्यादा आज के दिन के हवाले से जो पैगाम है वो ये है कि मेहनत कशों को एक हो जाना चाहिए, पूरी दुनिया को, बगैर रंग, नस्ल और बगैर किसी मुल्क की सरहद को देखते हुए, बल्कि पूरे मेहनत कशों को, क्योंकि आबादी का अक्सरियत जो ज्यादा जो तबका है, बड़ा तो जो तबका है, जो कमाता है, जो कमा के सरमायादार के हाथ में देता है, वो मेहनत कश है। तो मैं समझता हूं कि आज का पैगाम मुख्तसरन यही है कि दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो जाओ, जिदोजहद इल्म, जिदोजहद सोशलिस्ट इख्तिलाफ। बहुत शुक्रिया शबीर साहब। अब मैं LSF डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब मोहसिन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहसिन शाह साहब। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। स्टेज पे बैठे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान और हाल में बैठे तमाम दोस्तों और तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। हम आज 1886 यकम मई को शहीद होने वाले मजदूर तबके की याद में यहाँ जमा है। मैं इस चीज को बहुत ही गैर मुनासिब समझता हूं कि हम लोग फकत तकरीरों में, फकत नहरों में ही मजदूर तबके को याद रखते हैं, जबकि हमारे मजदूर का वही हाल है जो उस वक्त था और आज भी वही हाल है। हम लोग तकारीर में तो बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी वादे करते हैं, लेकिन ना तो हमारा कोई कानून, ना तो हमारी कोई रिवायत ऐसी है कि हम अपने मजदूर को ऊपर ला रहे हैं। जो तबका गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम से मैं यही एक मैसेज देना चाहूंगा
کہ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا قانون بنائیں کہ جو نہ صرف امیر کو امیر تر کرے بلکہ غریب کو بھی اوپر لائے. ہماری کوئی پالیسی، کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس سے ہم مزدور طبقے کو اوپر لا رہے ہیں. جو ملک کے حالات ہیں اور بالخصوص کشمیر کے حالات ہیں وہ انتہائی ناگزیر ہیں اور انتہائی پریشان کن ہیں. میں یہاں جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے کھڑا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں شہدائے شکاگو کو اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان تمام شہداء کو جنہوں نے آج تک نظام کو بدلنے کے لیے قربانیاں دی. اس کے بعد میں آپ سب سے یہ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو عملی طور پر سامنے کریں، اپنا عمل سے ثابت کریں کہ وہ مزدور طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ صرف تقاریب میں اور سال میں صرف ایک دن آ کر یہاں پہ چوکوں میں اور مختلف جگہوں پہ ہوٹلوں میں جا کر صرف تقریر کریں. والسلام. علم، جدوجہد، آزادی، خود مختاری، خوشحالی. اب میں دعوت خطاب دوں گا پی ایس ایف کے طالب علم رہنما حسن کاشف صاحب سے کہ وہ آئیں اسٹیج پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. حسن کاشف صاحب. جی بہت شکریہ کامریڈ لطیف بشیر. کامریڈ فیض احمد فیض کی ایک نظم سے آغاز کروں گا. فیض احمد فیض لکھتے ہیں کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی، ربا سچیا تو تے آکھیا سی، جاؤ بندیا جگ دا شاہ ہے تو، ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے، ساڈا نائب تے عالی جاں ہے تو. کدی سار بھی لئی اور رب سائیاں تیری شاہ نال جگ کی کیتیاں نے، کتے دونس پولیس سرکار دیے، کتے دھاندلی مال پٹوار دیے. میں ہڈاں وچ کلپے جان میری، جی میں پھائی وچ کونچ کو لام دیے. چنگا شاہ بنائی اور رب سائیاں، مینوں تیری شاہی نہیں چاہیے رب سائیاں، میں تے عزت دا ایک ٹکڑ منگدا ہاں. میری مننے تے میں تیریاں منا، تیری سوچ تیری گل بھی موڑاں. جے مانگ نہیں پوچھتی اور رب سائیاں تے میں جاواں تے رب کوئی اور لوڑاں. اسٹیج پر تشریف فرما. آج اس پروکار تقریب کے صدر ٹھیکیدار محمود صاحب اور اس کے مہمان خاص جو ہے وہ ڈاکٹر محمود الحسن صاحب. اسی طرح میرے سامنے بیٹھے پاکستان پیپلز پارٹی پی وائی او پی ایس ایف اور دیگر جو طلباء تنظیموں کے نمائندگان ہیں، عہدیداران ہیں، جو کارکنان ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام. میں وقت ضائع کیے بغیر ہی جو آج کے ایجنڈے کے اوپر آؤں گا، چونکہ کامریڈ لطیف بشیر کی طرف سے ہدایت تھی کہ اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیلی بات رکھوں اپنی. دوستوں اور ساتھیوں، یکم مئی کا دن سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف شروع کی جانے والی محنت کشوں کی ایک لازوال تحریک کی علامت ہے. یہ وہ تاریخ ساز دن تھا کہ جب شکاگو کے اندر محنت کشوں نے، مزدوروں نے، کسانوں نے جو کام کے جو اوقات کار تھے ان میں کمی اور اجرت میں اضافے جیسے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے انہوں نے پرامن جدوجہد کا آغاز کیا تھا. اگر نسل انسانی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اگر اس کے اندر کوئی جدوجہد سے بھرپور استحارے کا دن ہے تو وہ یکم مئی ہے، وہ یوم مزدور ہے. دوستوں ساتھیوں، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. جب زرعی غلامی کے بعد اجرتی غلامی، جاگیرداری کے بعد جب سرمایہ داری کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدل گئی، مگر نہ بدلی تو وہ مزدوروں کی جو استحصال کی شکل تھی وہ نہیں بدلی. چونکہ سرمایہ داری کے آغاز کے ساتھ ہی جو مزدوروں کے جو کام کے جو اوقات کار تھے وہ متعین نہیں تھے، اس لیے مزدوروں سے 18 گھنٹے کام لیا جاتا تھا. اور اس عمل نے اور اس دوران جو سرمایہ داری کا جو آغاز تھا اس نے مزدوروں کی جو زندگیاں تھیں ان کو مزید جو اجیرن بنا دیا تھا، اور مزدوروں کی جو ذاتی زندگی اور خاندانی زندگی کا جو تصور ہی موجود نہیں تھا. نت نئی مشینوں کی ایجاد، پیداوار کے اندر حیرت انگیز اضافے نے سرمایہ داری کو قومی مملکت کی جو حد بندیاں تھی ان کو توڑ کر جو نئی منڈیوں کی جو رسائی تھی
उसके लिए जो वो उकसा दिया था। लेकिन उस दौरान भी जो मेहनत कश था वो अपने हाथों से बनाई हुई पैदावार थी, जो एजाद थी, वो माली तौर के ऊपर इतनी सख्त नहीं रखता था कि वो उसको खरीद सके माली तौर के ऊपर। और फिर इस गुलामाना जो तरीकाकार था, इससे जो है तबकाती कशमकश थी, उसके अंदर मजीद इजाफा और फिर दुनिया भर की तरह जो है वो शिकागो के अंदर भी मजदूर तहरीक का आगाज हुआ। मजदूरों ने ऐलान किया कि उन्होंने ये मुतालबा भी रखा कि जो काम के औकात कार हैं उनमें कमी लाते हुए जो 18 घंटे के बजाय जो 8 घंटे के जो काम के औकात कार हैं उनका जो वो शेड्यूल नाफिज किया जाए। लेकिन उस तहरीक के अंदर असल खूबसूरती उस वक्त आई, उस तहरीक के हाके के अंदर असल रंग उस वक्त भरा गया जब अजीम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने उजरत और मुनाफे को ज़ेर बहस लाते हुए सरमायादारी के तहत दौलत की पैदाइश के ऊपर तफसीली नोट लिखे। अब चूंकि जो मजदूर था, जो किसान था, उसका जो बुनियादी मुतालबा था वो ये था कि जो काम के औकात है वो उकारें उसमें कमी लाई जाए। लेकिन ये जो मुतालबा था ये उस वक्त का जो सरमायादार था, जो उस वक्त का जो जागीरदार था, उसको किसी भी सूरत जो है वो कबूल नहीं था। और फिर इसी तरह अप्रैल 1886 में जो फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ने एक करारदाद मंजूर की और उसमें मेहनत कशों ने यह ऐलान किया कि 1 मई तक अगर काम के औकात कार में कमी न लाई गई तो फिर पूरी शिकागो के अंदर जो मेहनत कश जो मजदूर है, जो किसान है, वो अपना काम को छोड़ कर जब हड़तालों के ऊपर चला जाएगा। और इस मुताबिक को था तस्लीम किया गया। और फिर जो मजदूर था जो उस वक्त उसने जो है 1 मई को जो है ना जो एहतजाज था, जो हड़ताल थी, उसका ऐलान किया और फिर उसकी तैयारियां शुरू कर दी। और जो 1 मई था उस दिन पूरी जो अमेरिका का शहर था उसके अंदर जो 5 लाख मजदूरों ने जब वो एहतजाज में हिस्सा लिया। और उसी तरह जो शिकागो के अंदर भी जो 40,000 मजदूर थे वो भी जो है वो हड़ताल पे चले गए। क्योंकि पहले दिन की जो हड़ताल थी वो कामयाब तरीन रही। फिर 3 मई को दोबारा उन्होंने पुरअमन हड़ताल की कहा दी। और 3 मई को उस वक्त की जो पुलिस थी उसने उनके ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 मेहनत कश जो है वो शहीद हो गए। फिर दोबारा 4 मई को उन्होंने दोबारा पुरअमन हड़ताल की। और उस दौरान भी उस वक्त की जो पुलिस थी उसने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो दर्जनों मेहनत कश जो शहीद हो गए। और कुछ दोस्तों ने बात की कि उनके हाथ में सफेद झंडे थे। दोस्तों साथियों, उन्होंने जो अलामती तौर के ऊपर पुरअमन रहने के लिए सफेद झंडे थामे हुए थे, लेकिन उस अंधाधुंध फायरिंग की वजह से और मेहनत कशों के जिस्म से बहने वाला खून उन सफेद झंडों को लाल कर चुका था। और उस वक्त एक मजदूर वहां से उठा और उसने वो झंडा हवा के अंदर लहराया और तब से लेकर वो झंडा हवा के अंदर लहराया और तब से लेकर आज तक ये जो सूरत रंग है ये मजदूरों की अजमत और जो सोशलिस्ट इनकलाब है उसका निशान बन चुका है। उसके बाद फिर जो है मजदूरों के ऊपर अदालती मुकदमे चलाए गए, बेशुमार मजदूरों को जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और इसी तरह कुछ मजदूर रहनुमा ऐसे थे जिनको जो है फांसी की सजाएं सुनाई गई। और उसी दौरान जो अहम जो एक बुनियादी बात है जो मजदूरों की अजमत है, जिन्होंने जो इस अजीम इंसानी आदर्शों के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, उनमें जो कॉमरेड अस्पाइस था उसने जो है ना वो फांसी के जब उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया तो उसने जोरदार आवाज में कहा था कि तुम मजदूरों की आवाजें बुलंद होने दो। अगर तुम मजदूरों की आवाजें बुलंद नहीं होने दोगे तो यकीन जानो कि मजदूरों की तलवारें बुलंद होंगी। और इसी तरह कॉमरेड फिशर था, उसने ये कहा था कि हमें कोई अफसोस नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई सदमा नहीं है, हमें कोई गम नहीं है कि हम जाने देने जा रहे हैं, हम कुर्बानियां देने जा रहे हैं, बल्कि हमें खुशी है कि हम नस्ल इंसानी के लिए एक अजीम कुर्बानी देने जा रहे हैं जो आने वाली जो नस्लें वो जो उसको याद रखेगी। दोस्तों साथियों, इसी तरह जो उनकी जो मजदूरों की जो थी या जो कुर्बानी थी उससे बेशुमार नताइज जो हासिल किए गए, जिनमें जो काम के औकात कार है उनमें कमी लाते हुए 18 घंटे के बजाय जो 8 घंटे का शेड्यूल था वो नाफिज किया गया। मजदूरों को हफ्तावार छुट्टी का ऐलान किया गया। मजदूरों के जो केस थे उनकी समाप्त के लिए लेबर कोड कायम की गई और मजदूरों को फैक्ट्रियों और कारखानों के अंदर यूनियन साजी का हक दिया गया, अंजुमन साजी का हक दिया गया। और जो मेहनत कश खवातीन थी उनके हमल के दौरान जो है वो उनके लिए भी छुट्टियों का ऐलान किया गया। और फिर दूसरी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल सोशलिस्ट में कॉमरेड फ्रेडरिक एंगल्स की क़यादत में ये फैसला किया गया कि हम 1 मई को पूरी दुनिया के अंदर जो आलमी यौम मजदूर के तौर पर मनाएंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर तमाम तसबात से बालातर होकर वो रंगों, नस्लों, मजहबों, मुल्कों, तमाम तसबात से बालातर होकर आज पूरी दुनिया के अंदर मजदूर अपना झंडा लहरा रहा है और इस सरमायादारी को ललकार रहा है। दोस्तों साथियों, 1 मई का बुनियादी तौर के ऊपर दर्स यही है, उसका पैगाम यही है कि हम जो है ना बुनियादी तौर के ऊपर समाज के अंदर जो आम पढ़ते हैं उनके अंदर एक तबकाती जुड़त बनाते हुए इस सरमायादारी को जड़ से उखाड़ फेंके और एक ऐसे समाज की बुनियाद रखें जो इंसान दोस्त हो, एक ऐसे समाज की दोस्त बुनियाद रखें जहाँ जो पैदावारी ज़राए, जो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो मेहनत कशों के जमहूरी कंट्रोल में हो और ऐसे समाज की बुनियाद रखें जो हकीकी मानों में जो इंसान दोस्त हो। दोस्तों साथियों, हम जिस अहद के अंदर हम जिंदगियां बसर कर रहे हैं, हम इस वक्त एक इंतहाई पुरइंतशार और बहरान ज़दा अहद के अंदर जिंदगियां बसर कर रहे हैं और ये बहरान हर गुजरते वक्त के साथ साथ वो शदीद तर होता जा रहा है और इस बहरान का जो तमाम तर बोझ है वो टैक्सों की सूरत में जो तुलबा है, जो मेहनत कश है, उसके ऊपर लादा जा रहा है। बुनियादी तौर पे हम जो मार्क्सवादी हम ये भी समझते हैं कि जैसे जैसे ये निज़ाम अपनी उम्र पूरी करता नजर आ रहा है, ऐसे ऐसे जो इस निज़ाम की जो मतरूकियत है, इस निज़ाम की जो कमजोर बुनियादें हैं वो भी जो है वो लड़ती नजर आ रही है, वो भी अया होती जा रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ, जो हर गुजरता सेकंड है उसके साथ जो दौलत है वो चंद हाथों के अंदर मुंतकिज हो रही है, या जो दौलत का इर्तिकाज है वो चंद हाथों के अंदर हो रहा है। ठीक उसी तनासब के साथ जो तबका ज़ीरी है, जो मेहनत कश तबका है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो नौजवान है, जो तालिब इल्म है, उसके दुखों के अंदर भी, उसकी तकलीफ के अंदर भी ठीक उसी तनासब के साथ हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर देखते हैं, अखबारों के अंदर पढ़ते हैं, अमूमी तौर के ऊपर हमें ऐसे वाकयात अपने समाज के अंदर देखने को मिलते हैं कि फलां जगह में एक औरत ने गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों के गले काट डाले और फिर उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। या किसी एक जगह पे हम ये भी सुनते हैं कि जो मजदूर ने गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों को जो है नहर के अंदर फेंक दिया और उसके बाद खुद भी जो है उसने छलांग लगाकर उसने खुदकुशी कर ली। हर तरफ तबाही है, हर तरफ बर्बादी है, हर तरफ जिल्लत है, हर तरफ इस्तेसाल नजर आए। लेकिन इस खौफनाक सूरत हाल के अंदर, इस गंभीर सूरत हाल के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो हुक्मरान तबका है उसके अंदर हमें कोई संजीदा डिस्कशन नहीं नजर आ रही। हुक्मरान तबका कोई संजीदा डिस्कशन इस बहरान को लेकर कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम समझते हैं कि जो मजदूर है, जो किसान है, उसे 2 वक्त की रोटी के लिए आटा तक मैसर नहीं। हम तमें ये तालीम निसाब के अंदर ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान दुनिया का वो 7वां बड़ा मुल्क है जो बड़े पैमाने के ऊपर गंदम पैदा कर रहा है। लेकिन ठीक इस वक्त, ठीक इस सूरत के अंदर जो आदाद और शुमार है उनके मुताबिक जो पाकिस्तान बैरूनी ममालिक से जो गंदम मंगवा रहा है वो 75 लाख मैट्रिक टन गंदम है जो दूसरे ममालिक से मंगवा रहा है। इसी तरह लंबी लंबी कतारें लगी है आटे के वसूल के लिए। इंसान जलील हो रहा है, इंसानी अजमत की तजलील की जा रही है और उस दौरान उन आटे की कतारों के अंदर फैलने वाली बदनज़मी से बेशुमार हलाकतें हुई हैं। उन हलाकतों के अंदर बच्चे शामिल हैं, उन हलाकतों के अंदर बूढ़े शामिल हैं, उन हलाकतों के अंदर जो औरतें शामिल हैं। हम समझते हैं कि वो अपनी तबी मौत नहीं मरे, उनका कत्ल किया गया है और उनका जो कातिल है वो ये सरमायादार तबका है, ये जो जागीरदार है, यहाँ की जो अशराफिया है वो उसकी जिम्मेदार है, यहाँ का जर्नैल उसका जिम्मेदार है, यहाँ की अदलिया उसकी जिम्मेदार है। इसी तरह हम देखते हैं कि तेल, बिजली और गैस है तो उन पर जनरल सेल्स टैक्स और इसी तरह जो अशिया सर्फ है उनकी कीमतों में इजाफा करके यहाँ का हुक्मरान तबका जो है वो उनके जो बड़े बुनियादी आका हैं जिनमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या जो मालियाती इदारे हैं उनकी भरपूर दलाली करते हुए हमें नजर आता है। दोस्तों साथियों, हम समझते हैं कि इसी तरह जो ये जो माशी बहरान है, आप ये रियासती बहरान को भी जन्म दे रहा है। जो चोरी के वाकयात हैं, जो डकैती के वाकयात हैं, जो कत्ल और गारत के वाकयात हैं, उनमें दिन ब दिन इजाफा नजर आता है। और इसी तरह जो पाकिस्तानी रुपया है वो अमरीकी डॉलर के मुकाबले में या जो गैर मुल्की करेंसी है उनके मुकाबले में अपनी कदर मुकम्मल तौर पर खो चुका है। और इसी तरह जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जो बंदरगाह हैं उनके ऊपर जो अशिया सर से लदे कंटेनर वो खड़े हैं
لیکن حکمران طبقہ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کو جو ہے اپنے اس ریاست کے اندر منگوا سکیں، یا جو ریاست کے لوگ ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی اور ان کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکا۔ اسی طرح پچھلے 8-10 ماہ سے جو بالواسطہ ٹیکس ہے ان کے اندر جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری اور ساری ہے۔ اسی طرح جو افراد اعزار ہے جو اس کے اندر جو ہے 50% تک اضافہ ہو چکا ہے، جس کی مثال شاید ماضی کے اندر نہیں ملتی، اور پاکستان کی جو بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں وہ 70% تک ہو چکی ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح جو پاکستان کے زر مبادلہ ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے تمام تر جو زر مبادلہ ہے وہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کی مد میں کم ہو کر وہ صرف اور صرف جو ہے $4 بلین جو باقی رہ گئے۔ اسی طرح جو پاکستان کے اندر جو شرح سود ہے اس میں 21% تک اضافہ ہوا، اور اسی طرح جو پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ 37% تک پہنچ چکی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر اس حکمران طبقے سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ جو ریاست کے اندر جو بنیادی جو مزدور ہے، جو کسان ہے، اس کے جو بنیادی مسائل ہیں، جن میں تعلیم کے مسائل ہیں، جن میں صحت کے مسائل ہیں، وہ ان کو حل کر پائے گا۔ اسی طرح پاکستان کے جو جی ڈی پی ہے، جس کو جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی رواں جو مالی سال ہے اس کے اندر جو صرف اور صرف جو ہے وہ 4% تک اضافہ ہوگا۔ اب پاکستان کے اوپر جو تمام جو بیرونی قرضے ہیں وہ ہماری پاکستان کی جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، جو جی ڈی پی ہے، اس کے جو 78% ہے، اور جو اندرونی قرضے ہیں وہ پاکستانی جی ڈی پی کے 50% ہے۔ اور پاکستان کے اوپر یہ تمام تر جو قرضے ہیں یہ جو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی جانب سے، عالمی جو مالیاتی ادارے ان کی جانب سے پاکستان کو آنے والے 3 سالوں میں بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے $75 ارب درکار ہیں، اور پاکستان کو ہر سال $25 ارب جو وہ درکار ہے کہ وہ بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کی مد میں دے سکے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 1988 سے لے کر اب تک جو ہے وہ IMF کی جو لگڑی جو بیساکھیاں ہیں انہی کے اوپر چلتی آ رہی ہے، اور ہم آنے والے دنوں میں مزید دیکھیں گے کہ جو سامراجی حملے ہیں، جو عالمی مالیاتی اداروں کی لوٹ مار ہے، اس کے اندر بھی مزید جو ہے وہ اضافہ نظر آئے گا۔ اور اسی طرح پاکستانی افق کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو مزدوروں کی نمائندگی کرتی ہوئے نظر آئے، جو کسانوں کی نمائندگی کرتی ہوئے ہے، جو جتنے بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنا بھی حکمران طبقہ ہے، یہ جو مقامی اشرافیہ ہے، مقامی جاگیردار ہے، مقامی سرمایہ دار ہے، اس کے جو بڑے آقا ہیں جن میں جو IMF عالمی مالیاتی ادارے ان کی جو ہے دلالی کرتے ہیں، نوجوان ہیں جن کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے، اور آنے والے 3-4 دہائیوں کے اندر ہم مزید دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ 2 ملین جو نوجوان ہے وہ پاکستان کی جو لیبر فورس ہے اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ طلبہ یونین کے اوپر پابندی، جو تعلیمی ادارے اس طلبہ یونین پابندی کے ذریعے جو تعلیمی اداروں کے اندر جو نوجوانوں کے اندر ایک ڈسکشن تھی، جو فلسفے کو لے کر ڈسکشن تھی، جو سیاست کو لے کر ایک ڈسکشن تھی، جو معیشت کو لے کر ایک ڈسکشن تھی، جو آرٹ کلچر موسیقی شاعری کو لے کر ایک جو ڈسکشن موجود تھی، اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جو نسل انسانی ہے، جو پاکستان کے اندر جو طبقہ ذیلی ہے، جو مزدور ہے، جو کسان ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ انقلاب کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ بربریت کا راستہ ہے، اور یقینی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی عام پرتے ہیں ان کو طبقاتی جڑت بناتے ہوئے، بنیادوں کے اوپر جو طبقاتی جڑت بناتے ہوئے، انقلابی بنیادوں کے اوپر، طبقاتی بنیادوں کے اوپر، جدلیاتی بنیادوں کے اوپر ایک عظیم جدوجہد کو مزید تیز کرنا ہوگا۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر یہ جو معاشی بحران ہے، یہ جو لرزتی اشرافیہ ہے، جو لرزتا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا، اور ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھنی ہوگی جو انسان دوستوں ساتھیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ مارکسوادی یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ مارکسسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سماج کا دیا ہوا ہر دکھ، اس سماج کی دی ہوئی ہر ذلت، اس سماج کا دیا ہوا ہر استحصال وہ ہمیں ڈرا نہیں سکتا، وہ ہمیں جھکا نہیں سکتا، بلکہ سماج کا دیا ہوا ہر دکھ ہمارے سوشلسٹ نصب العین میں اضافہ کرتا ہے اور ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر گزرتا لمحہ سرمایہ داری کی عمر کو بڑھا رہا ہے، اور جو سوشلزم ہے، جو کمیونزم ہے، اس کے راستے کھول رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے محنت کش طبقے کے اندر ایک عظیم جڑت بنائی جائے، اور جس کے نتیجے میں سرمایہ داری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، اور ایک ایسے سماج کی بنیاد رکھی جائے جو انسان دوست ہو، جس کا مقصد صرف انسان کی قدر ہو، جس سماج کے اندر نسل
कुरान और मजहब की बुनियाद के ऊपर इंसान से नफरत का सिखाई जाए, वो ऐसा समाज हो जिसके अंदर हर इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, और ऐसा समाज सिर्फ सोशलिज्म के और कम्युनिज्म के जरिए मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त कांग्रेस का शेर। अब मैं दावत इख्तिताम दूंगा नूर लीग सिटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब मारूफ सरदार मारूफ साहब से कि वहाँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। चेयरमैन पीएस साहब, आमर इनकलाबी साहब, असरार शाह साहब, नसीम आदम साहब, बाबर राजा साहब, खालिद मुगल साहब, नईम अब्बास साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नसल्ली व रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज इस पूर्वकार तकरीब के चीफ गेस्ट, ऑनरेबल पर्सनैलिटी, रिटायर्ड सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब इज्जत महाब डॉक्टर महमूद हसन, और आज की और आज इस पुरवकार तकरीब की सदारत ठेकेदार अनवर साहब और उनके साथ दिगर शौकत मुगल साहब और दोस्त जो बैठे हुए आमर इनकलाबी साहब और पंडाल में बैठे हुए इंतहाई काबिल एहतराम और अजीम लोगों, मेरी तरफ से सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। आज आलमी यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस का इनकार रदीफ बशीर साहब और इनकी टीम ने जिस तरह यहाँ पर मुनक्कद किया, इन्हें भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज ये जो यौम मजदूर का दिन जो मनाया जा रहा है, ये एक तारीख का नाम है, एक जिदोजहद का नाम है, लेकिन मजदूर को इस्लाम के अंदर भी, आइन के अंदर भी, कानून के अंदर भी तमाम चीजों की जो है ना वो इजाजत है, हक दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से इस सिस्टम के अंदर वो मुंसफाना जो हकूक इनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल सके, जिसकी वजह से आज रियासत के अंदर जो बदहाली, असल जो रीढ़ की हड्डी है, ये माशियत की, मुल्क की तकदीर बदलने की, वो असल में आप मजदूर लोग हैं। जब तक डॉक्टर साहब इनके हकूक, इनके जो राइट्स हैं, जब तक मुंसफाना इनको नहीं मिलेंगे तो रियासत के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। असल बुनियादी मुद्दा ये है। मैं रदीफ बशीर साहब और आपकी कायदीन को इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूं, जिस शख्सियत को आपने यहां पर बतौर चीफ गेस्ट बुलाया, वो इस दिन के हवाले से हकदार हैं। वो इस तरह हकदार है कि यहाँ गुलपर के अंदर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखने के बाद वहां पर काम शुरू हुआ, लेकिन यहाँ के अंदर बड़े बड़े लोग हुकूमतों में भी बैठे हुए थे, मिनिस्टर भी थे और बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी बैठे हुए थे, लेकिन जब मजदूर के हकूक की बात आई तो उन्होंने अपने तल्लक जो चीफ सेक्रेटरी और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और मुतलका हाइड्रो प्रोजेक्ट की इंतजामिया से खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं डॉक्टर महमूद हसन साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उस वक्त उन मजदूरों के हकूक की जंग लड़कर इनको हक दिलाने वाली शख्सियत डॉक्टर महमूद हसन साहब है। मैं यहाँ पर आप मुझसे पहले फाजल दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत बातें की, मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, इस शहर का रहने वाला हूँ, मेरा तल्लक सिटी कोटली से है, तो मैं यहाँ पर बुनियादी मसाइल ठेकेदार अनवर साहब यहाँ की लेबर के हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मायूसी की बातें नहीं करनी चाहिए।
जहां पर मुस्बत अंदाज में भी बात करनी चाहिए। मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, जहां का चीफ सेक्रेटरी भी मजदूर का बेटा है। सादत खान मेयर ऑफ लंदन पाकिस्तान के एक मजदूर का बेटा फैसलाबाद से तल्लुक रखता है। जितने भी बड़े लोग आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर पुरजमान हैं, वो एक मजदूर के बेटे थे। आज के दिन मैं उन भाइयों को जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा के मुल्क की अहम पोस्टों पर मिनिस्टर बनवाया, वजीर आजम बनाया, हम उन्हें फराज तहसीन इस दिन के वसादत से पेश करते हैं। बड़े लोग चंद ही आपको नजर आएंगे। आप जिस तरह आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, आपके अंदर अब वो हक को सच करने की बात का दंग आ गया है, पूरी रियासत जाग उठी है। ये ज्यादातर आर्टिफिशियल और बनावटी, इनमें भी हमारा कसूर होता है। जब इलेक्शन होते हैं तो हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो मजदूर का हक मारते हैं, यहाँ का इंसाल करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान का इंसाल करते हैं, मेरिट पर उनको नौकरियां नहीं देते, फिर हम वोट देकर उन्हें असेंबलियों में भेज देते हैं। आज के दिन के वसादत से हमें ऐड करना होगा, हमें उन लोगों को वहां पर भेजना चाहिए जो एक गरीब और मजदूर का बेटा जो पीएचडी करके, जो एमफिल करके जिसकी नौकरी की वो बात करे। इस हवाले से हमें आने वाले इलेक्शनों में इन चीजों पर भी नजरें रखनी चाहिए। मैं मुख्तसर और डॉक्टर साहब ने असर बात करनी की थोड़ी सी लंबी हो गई माजरत, तो मैं आपसे यही इजाजत चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब यहाँ कोटली के अंदर हमारे मजदूर तबका, हमारे भाइयों को बेशुमार मसाइल हैं जो इंतजामिया बिला वजह बाज़ यहाँ पर जो कंट्रैक्टर काम करते हैं उन्हें भी बाज़ बड़ी जो है ना प्रॉब्लम होती है। इन चीजों पर भी आप नजर रखें। थैंक यू। अब मैं PSF के रहनुमा मोइन चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आने वाले मुकर्रीन से गुजारिश है कि वो वक्त का ख्याल भी रखें ताकि प्रोग्राम को जल्दी समाप्त किया जा सके। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। स्टेज पे बैठे तमाम कायदीन और पंडाल में बैठे तमाम दोस्त और कायदीन और PP, PSF और PYO एंड SLF के तमाम कायदीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आलमी यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 1 मई यौम मजदूर दिन मनाया जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखें, आज यौम मजदूर दिन मनाया तो जा रहा है लेकिन मजदूर आज भी दिहाड़ी पर गया हुआ है तो और अमीर आज छुट्टी कर रहा है। तो सोचने की बात यह है कि ये दिन मनाया क्यों जा रहा है। जिसका दिन मनाया जा रहा है वो काम पर गया हुआ है और जिस दिन को हम मना रहे हैं, हम छुट्टी कर रहे हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन शोहदाए शिकागो को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने बगावत की मजदूरों के हक में। मजदूरों के लिए जो पहले वक्त मुकर्रर था वो 16 से 18 घंटे था, जबकि उन्होंने बगावत की और मजदूरों के हक में आवाज बुलंद की। उसके बाद जाकर ये जो वक्त मुकर्रर हुआ 8 घंटे आएगी, 8 घंटे है। इसके साथ मैं जुल्फकार भट्टो और बेनजीर भट्टो को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने मजदूरों के हक में आवाज बुलंद की, रोटी कपड़ा और मकान लाजिम किया। देखें, मजदूर के लिए सबसे पहले अहम चीज जो है, या हम कह सकते हैं अगर हर इंसान के लिए जो जरूरी चीज है वो रोटी कपड़ा और मकान ही है। देखें, रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अगर ज़हनी सुकून ना हो तो हम कोई सोच पैदा नहीं कर सकते। तो मुख्तसर सा टाइम लूंगा तो मैं शिकागो के उन मजदूरों, उन अजीम इंसानों को सुर्ख सलाम पेश कर रहा हूँ कि जिन्होंने मजदूरों के हक में आवाज बुलंद की और उनके लिए एक नई राह हमवार की। शुक्रिया। अब मैं PSF यूनिवर्सिटी के कन्वीनर जनाब असामा चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ अपने ख्यालात का इजहार करें।
पेड़ के नीचे जरा सी छाँव जो मिली उसको, पेड़ के नीचे जरा सी छाँव जो मिली इसको, मजदूर सो गया अपने तन पर बोरियां बिछाकर। सभी निर्विकार, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज आलमी यौम मजदूर कॉन्फ्रेंस कोल्डी में आप सब मौजूद हैं। मैं तमाम आने वाले मोअज़्ज़िज़ीन का एज अ कन्वेनर स्टडी सर्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कोल्डी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम अहबाब इसमें शरीक हुए। अहले इल्म में बैठने वालों, आज सरमाई की भट्टी में जलने वाले उन मजदूरों का दिन है। आज सरमाई की भट्टी में जलने वाले उन मजदूरों का दिन है, मेहनत कशों का दिन है, जो मजदूर आज भी छुट्टी नहीं कर सकते। आज भी वही तबके छुट्टी कर रहे हैं जो उनके हुकूक का इस्तेहसाल करते हैं। आज भी वो तबके छुट्टी कर रहे हैं जो उनके हुकूक का इस्तेहसाल करते हैं। आज सरमाई की भट्टी में जलने वाले उन मेहनत कशों का दिन है जिनको हम जरा सा एहतराम और इज्जत से नहीं नवाजते। हमको उनको इज्जत और एहतराम से नवाजना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो हमारी कंट्री चल रही है, हमारा मुल्क चल रहा है। मैं इतना तफसील में नहीं जाऊंगा, तमाम भाई बयान कर चुके हैं। मैं इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूँ। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। बस सलाम। अब मैं PSF के इमाम तैयब चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मसावत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरम्मत को कुचल देते हैं हालात। तू कादिर व आदल है मगर तेरे जहां में, तू कादिर व आदल है मगर तेरे जहां में, है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और दीगर पंडाल में बैठे हुए मेरे भाइयों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PSF, PYO और दीगर तलबा तंजीमों से तल्लुक़ रखने वाले मेरे अजीज साथियों, सबको मेरी तरफ से मोहब्बाना सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये पुरवकार पुरबहार महफिल, जैसा कि हम सब लोग बखूबी वाकिफ हैं कि यौम मजदूर डे के मौका पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आज के दिन 1 मई 1986 में अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूरों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपनी जानें कुर्बान की। ये बात ठीक है कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई, क्योंकि उससे पहले जो वक्त होता था मजदूरी का वो 16 से 18 घंटे था, लेकिन अब 8 घंटे है। काफी हकूक मजदूरों को मिले हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि मजदूर को अभी उस तरह से सारे हकूक नहीं मिले हैं। आज यहाँ पर अपने मजदूर भाइयों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहुत अच्छे तरीके से कामरेड रदीफ बशीर और हसन काशिफ साहब ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो मजदूर तबका है वो दिहाड़ी पे जाता है और जो सरमायादार लोग हैं वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूरों, सोचने की बात यह है कि मजदूरों का जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, जो मजदूरों के हकूक के लिए आलमी सतह पर अगर अक़वाम मुत्तहिदा नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? मुल्की सतह पर अगर हुकूमत नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, मजदूरों के हकूक का ख्याल रखा, उनका दुख दर्द जाना अगर, तो
अमीर उल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जब अमीर उल मोमिनीन जब खलीफातुल मुस्लिमीन मुकर्रर हुए तो लोगों ने पूछा कि ए अमीर मोमिनीन आपकी तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए, तनख्वाह के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मौजूद जो एक मजदूर है, उस मजदूर की जो पूरा दिन काम करता है उस हिसाब से जो उसकी पूरे महीने की तनख्वाह है मेरी भी उतनी ही तनख्वाह मुकर्रर की जाए। तो लोगों ने पूछा ए अमीरुल मोमिनीन कि आपका इस पर गुजर बसर हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि अगर एक मजदूर का गुजर बसर हो सकता है तो मेरा भी इस पर गुजर बसर हो जाएगा। तो वक्त अपने दामन में इतनी वसत नहीं रखता, तो मैं दरिया को खोजने में बंद करने जा रहा हूँ। तो आखिर पे मैं तमाम मौजूद मेहमानान गिरामी और जितने भी लोग प्रोग्राम में शिरकत की, आप सबका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। आपकी तशरीफ आवी हमारे लिए बाइस तस्कीन दे रही, दिल के पाताज से उठती हर सदा आपकी इस नवाज़श पर मशकूर ममनून है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। मैं राजा मिरान, साईं फरहान मंसूर साहब, लाल चौधरी, आबद नूर, तौकीर खुर्शीद, दानिश चौधरी, रबाब चौधरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। मैं महकमा हेल्थ से फैजान असर राजा साहब, रमजान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दावत इख्तार दूंगा साबक रहनुमा पीएस साहब, PYO कश्मीर के मेंबर सेंट्रल सेक्रेटरी कमेटी सरदार महमूद साहब से जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्रा के दारो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकां को में हसन हो रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। आज का दिन शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करता है, जिन्होंने आज पूरी दुनिया के मजदूरों के लिए कुर्बानी देकर एक तारीख रकम की। कॉमरेड हसन काशिर ने सब बातें आपके सामने रख दी हैं। इस अहद में, इस दौर में जिल्लत है, रुसवाई है, बेरोजगारी है, नंग है, भूख है, रोटी कपड़े मकान के लिए एक आदमी तरस रहा है। इस अहद में गरीब का जीना बहुत मुश्किल है और हम सब तलबा तंजीमों को मिलकर इस निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद करनी होगी। वस्सलाम, इल्म, जिद्दोजहद, इनकलाब। अब मैं दावत इख्तार दूंगा महकमा हेल्थ से आए हुए फैजान असद राजा साहब से कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। कॉमरेड फैजान असद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्टेज पे बैठे हुए नाम लेना मुश्किल होगा सबका, सब जो काबिल एहतराम लोगों को और इस जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले कॉमरेड रदीफ साहब, PSF के नौजवान कॉमरेड्स, जो लोग भी इसमें जिन्होंने हिस्सा डाला, उनको खराज अकीद पेश करता हूँ, खराज तस्लीम पेश करता हूँ। और मैं चूँकि एज ए प्रेसिडेंट हेल्थ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन आपसे मुखातब हूँ। ये सिलसिला चूँकि हमसे पहले भी जारी है और ये शिकागो से स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद भी जारी रहेगा, लेकिन मौजूदा वक्त की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा उजागर करें। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि मजदूर का जीना हराम हो चुका है। हर तरफ देखें, अभी जो गवर्नमेंट गई है उसके हवाले से कल से हम सुन रहे थे कि इतनी करप्शन हो गई, इतनी करप्शन हो गई। इससे पहले तो हमें यह सुनाया जाता था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं, ये पे नहीं ले रहे, ये वो नहीं ले रहे, ये तो बहुत जबरदस्त इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना देंगे एक जगह को। लेकिन कल जाने के बाद पता चला अब ये खुल रहा है उनके अपने मिनिस्टर उतार है। चूंकि मैं एक डोमेन में हूँ, मुझे डोमेन में रहने की बात करने की जरूरत है। मैं चूंकि तारीख पे जाऊँ तो सबको पता ही है कॉमरेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी ये मजदूर को वो शिकागो वाली जो लोग थे वो दब दे रहा है उन नौजवानों को, उन मजदूरों को, ये कि अगर आप इस तरह से चुप करके बैठे रहेंगे तो आप 90%
90% जो है वो 10% लोग आप पे काबुज रहेंगे। तो वक्त की जरूरत है कि हम हिस्ट्री को उठाएं, हम पढ़ें कि वो शिकागो वालों को क्यों मारा गया था, उनके मरने से क्या हुआ था, उनके शहीद होने से हमें क्या फायदा पहुंचा। ये सिलसिला चल रहा है आगे, तो ये सिर्फ हम इसको एक ही जगह पे स्टक करके रखें, हम प्रैक्टिकली अपने मामलात को इसमें लेकर आए। वक्त की जरूरत है कि आए रोज ये जो महंगाई, ये तूफान, ये मुश्किलात, ये माली जो इमरजेंसी, ये मजदूरों ने नहीं लाई हुई, ये मेहनत कशों ने नहीं लाई हुई, ये जो लाने वाले हैं ये यही जो कैपिटलिस्ट है, यही सरमायादार है जिन्होंने ये सारा बड़ा घर किया हुआ है। और अब हमें जानना होगा, हमें अपने नस्लों के लिए जानना होगा और हमें आवाज बुलंद करनी होगी और हमें दुनिया भर के मेहनत कशो इसको जानना होगा कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, इसके जो असल मकासद है उसको जानना पड़ेगा। इसके नीचे हमें खड़ा होकर हमें इसके नीचे यूनाइट होना पड़ेगा, वरना ये जो है ये दिन ब दिन हालात जो है वो बदतर हो रहे हैं। तो मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं PYO के रहनुमा शौकत मुगल साहब से गुजारिश करूंगा कि वह अपने ख्यालात का इजहार करें। शौकत मुगल साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या नबी अल्लाह। स्टेज पे बैठे हुए कायदीन और मुझ जैसे गरीबों के सहारा और पिंडाल पे बैठे हुए मेरे साथी, मेरे आम सफर, मेरे दोस्त, मेरे कामरेड, आपको शौकत मुगल का सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी जो है वो अदा की जाए। मैं इस शेर के साथ आपके साथ मुखातब हूंगा कि लगा के आग सीनों में चिरागाहों को हम जलाते हैं, अगर हो मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं, औरों का जीना भी क्या जीना, आओ तुम्हें अपनी मर्जी का जीना हम सिखाते हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, सबसे पहले जो हमारे शुहदा हैं, जो मजदूर शुहदा हैं, मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ इस वजह से कि वो तो अपनी जान अफरीन कर गए, लेकिन हम जैसे मजदूरों को ये सिखा के गए कि जीना है शान के साथ, जीना है एक नजरिए के साथ, एक सोच के साथ। जनाब सेक्रेटरी साहब, मैं बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं, गरीब दोस्त हैं, उनके साथ मिला। मैंने कहा कहाँ से आए हो? उन्होंने फरमाया कि शौकत भाई, हम उस जगह से आए हैं जिस जगह हमारा कोई सहारा नहीं था, हमें गैस सिलेंडर की जरूरत थी, सेक्रेटरी साहब ने दिया, हमें सामान की जरूरत थी, सेक्रेटरी साहब ने दी। लेकिन अब जो बात है वो मैं करने लगा हूं कि मुझ जैसे गरीब की, जो यहाँ पे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो गिलगित से, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, पठान में अपने शहीद चौक के अंदर सुबह बैठ कर जब देखता हूं तो दिल कौन के आंसू होता है। मैं उन भाइयों से, उन दोस्तों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि एक मजदूरों की जो आवाज है उस आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। मजदूर का जो पसीना है, जिस होटल के अंदर हम मौजूद हैं, ये होटल बनाने वाले हम जैसे मजदूर हैं, लेकिन जब इस होटल के अंदर आते हैं, इसको बनाकर इसका निजाम चेंज किया कर दिया जाता है। वो निजाम इस वजह से चेंज कर दिया जाता है कि ये हमारे जो गरीब मजदूर हैं, जो हमारे गरीब तबकात के लोग हैं, वो इस होटल के आने से पहले जब अंदर आए तो उनका सूट बूट अच्छा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये जो बिल्कुल ये जो मनफी सोच है, ये हमको खत्म करनी चाहिए। हमारे अंदर उसी वक्त साफ होंगे जब मैं एक गरीब के साथ बैठकर खाना खाऊंगा, जब मेरे साथ गरीब बैठकर खाना खाएगा। मैं यही कहूंगा, आजाद कश्मीर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वे जो PDM के प्राइम मिनिस्टर हैं, चूंकि कामरेडों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कामरेडों के ही होते हैं, लेकिन ये PDM के जो प्राइम मिनिस्टर, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि PYO, PSF और हमारे जितने यूथ के नौजवान हैं, हमने एक तहरीक मुजफ्फराबाद के अंदर चलाई थी कि हमारे बहुत से जो गरीब दोस्त हैं, जो गरीब नौजवान हैं, जिनकी उम्रें
बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिला। मुझे अफसोस है ऐसे करप्ट निजाम पर कि जिनको ये पता नहीं कि हमने एक गरीब बेटे का जब टेस्ट लेना है तो मैं खुद मेरिट, मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो MSc BSc इस तरह है, वो ये मेरिट को पामाल कर किया जा रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे गरीब दोस्त हैं उनके साथ जो हमारी एक जदोजहद का रिश्ता है, जो शोहदा के साथ एक हमारा खून का रिश्ता है, ये जो झंडी, ये जो सुर्ख पट्टी हमने पहनी हुई है, इस पट्टी को हमने हमेशा अपने सीने पे लगाया और हमने ये कभी नहीं सोचा, हमने कोई बरादरियों की बुनियाद पर या तासब की बुनियाद पर हमने अपने किसी ऐसे बंदे को प्रमोट नहीं किया। हमने हमेशा हसन कासर जैसे लोगों की सपोर्ट की, हमने हमेशा कामरेड लतीफ बशीर जैसे कि जिन्होंने हर साल के अंदर जब यौम मजदूर डे आता है वो बड़ी पुरवकार तकरीब के साथ वो बनाते हैं और वो इस तरह के काम मैं लतीफ बशीर साहब आपको और आपकी पूरी टीम को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं चूंकि सूफी रशीद साहब का ये हुक्म था कि आपने जो है ना वो बिल्कुल कम बोलना है, मैं ये जी जा रहा था कि ये जो मजदूर हमारे बैठे हुए हैं, ये मेरे भाई मेरे दोस्त, इनके साथ मैं ऐसी बातें शेयर करूं कि जब मैं एक बात मैं अपनी कर दूं अपनी साथ बिल्कुल खुल के करें। मैं चूंकि हुक्म आया कि 3 मिनट मुझे और मिल जाए, जब मैं थर्ड ईयर में था इस कॉलेज के अंदर, तो मेरे वालिद मोहतरम आज भी किसी के आगे वो मुलाजमत करते हैं, वो सेक्रेटरी साहब जानते हैं उनको, सब मेरे दोस्त भाई उनको जानते हैं। जब मैंने अपने वालिद मोहतरम को ये कहा कि अबू जी हमारा जो हम 3-4 भाई हैं, 1-2 बहनें, हमारा गुजारा नहीं हो सकता आपकी तनख्वाह पे, तो आप मुझे एक छोटी सी शाप डाल के दें। मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने कहा, चूंकि हम अपने दोस्त भाई बैठे हुए हैं, जनरल तकरीर तो हसन काशिर साहब और मेरे भाई दोस्त कर चुके हैं, मैंने अपने वालिद मोहतरम को कहा कि मुझे एक छोटी सी शाप डाल के दें। उन्होंने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको शाप नहीं डाल दूं। जब ये बात हुई तो मैं फिर भी पूरा उम्मीद था कि मैं गरीब बाप का बेटा जरूर हूं, लेकिन इसका कोई हल निकालना है, क्योंकि मेरे भाई हैं उनको मैंने पढ़ाना है, मेरी छोटी सिस्टर हैं उनको पढ़ाना है, लेकिन उसी सूरत में जब मेरे पास कुछ होगा। ऐसा हुआ कि 2010 में मैंने एक छोटी शॉप खोली, उस पे मैंने 5 सिलेंडर जो है वो उतारे। मेरे यहाँ मैं उनको बात ही कहूंगा कि मलिक बशीर साहब हैं कैब गैस वाले, उनसे लिए। सुबह में एक मजदूर का बेटा हूं, सुबह में 5 बजे अपनी दुकान पे आता था, रात 12 बजे बंद करता था। और 2013 में डॉक्टर साहब मेरे पास 8 एजेंसी थी गैस की, सरमायादार बन गया अपना। और जब मैंने ये जब सिस्टम अपना एक बिल्कुल गरीब सिस्टम से शुरू किया, फिर मैंने 102 आदमी हैं जिनको अपने साथ काम में मिलाया गरीबों के साथ, और 102 मैंने वो एजेंसी अपने पैड पे दी उन लोगों को। आज पूरे आजाद कश्मीर के अंदर कई घराने वो एक गरीब जैसे आदमी के साथ मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं इसी शेर के साथ जा चाहूंगा कि जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर, जिए बिलावल, जिए आप साहब। बहुत शुक्रिया शोभन मोहर साहब। अब मैं लेबर ब्यूरो के रहनुमा सदर तकरीब इस तकरीर के रूए रवा ठेकेदार अनवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ठेकेदार अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम। बुनियाद पर बैठे हुए तमाम साहिबीन को सलाम करता हूँ और स्टेज पे बैठे हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें प्रोग्राम तो बहुत बड़ा हो गया है, इतना वक्त तो नहीं था, मैं चाहते हुए कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और लतीफ बशीर का मैं शुक्रिया शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया, जो उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। और डॉक्टर साहब आप तो खुद ही जानते हैं, शहर के रहने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बेसहारा लोग हैं, सब बेसहारा लोग हैं। लोगों के पास कुछ होता तो अपने घर बैठ कर नहीं खाते। ये आप इंशाअल्लाह ताला पाक ख्याल करें और सबकी हम सोचते हैं कि भलाई होनी चाहिए, ताकि आप इन लोगों के जाना आप मसीहा बने
ताकि हमारे मजदूर जितने हैं इनके पास दवाई के पैसे नहीं होते, अस्पताल में जाते हैं तो पर्ची लेकर देते हैं जी जाए आप मेडिकल स्टोर से दवाई लाए। मजदूर का बेटा स्कूल में जाता था, कहता है कि आपके पास किताबें नहीं है। मजदूर का बेटा बाजार जाता था, उसके पास उसके लिए सब्जी और फूड के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये देखिए मजदूरों की कहाँ जाएं, क्या करें। या बड़े लोग बैठे हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप इंशाल्लाह आप ये इलेक्शन में लड़ेंगे। और मजदूरों के लिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि मजदूरों के लिए बस जो है ना सब कुछ जो है ना आपने करना है। हमारे वसीला आप ही हैं, किसको हम बताएं। असेंबली हम जा नहीं सकते, किसका बेटा असेंबली में गया है, कोई भी गया तो अपने पुत्र पर गया है या किसी की सिफारिश में गया या किसी को पैसे देकर गया है। लेकिन आपने जो करना है हमारे वसीला आप ही बनेंगे। और इंशाल्लाह आप इस इलेक्शन में भी आए आगे, हम यही चाहते हैं कि आप ही इंशाल्लाह आपको तरक्की ज्यादा पाठ दें और इंशाल्लाह ताला आपको रहना दिन दोगुनी तरक्की करवाए। और सबको रहना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम भाइयों का, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया चुका है, आपने भी कहीं जाना है और काम है आपको सब। और एक मेरे दोस्त ने कहा कि सब मजदूर काम पे हैं। मैं भाई इतनी हो गई है, इतनी हो गई है सर कि आप कोई आदमी झाड़ क्यों नहीं तोड़ सकता, झाड़ तोड़ेगा तो खाएगा कैसे। आप सोच रहे कि घी आटा मिलता ही नहीं है, चीनी तो हमारे पाकिस्तान से याद हो चुकी है। और क्या कर रहे हैं, मजदूर का काम पे नहीं जाएगा तो किधर से खाएगा। एक आटे की कुट्टी 3000 रुपए की हो गई है, घी का डब्बा भी आपको 2800-3000 रुपए हो गया है। मजदूर छुट्टी कैसे करेगा। एक मजदूर छुट्टी करती है तो 2 महीने पीछे चला जाता है। ये आप खुद ही सोच रहे हैं, ज्यादा बातें कर रहे भाई ना, वो तो ज्यादा बातें कर चुके हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मेरी बातें इतनी करनी नहीं चाहिए। बाकी मैं वक्त आपका डॉक्टर साहब को देता हूँ। वसलाम, मेहरबानी। तमाम दोस्तों भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ। वसलाम। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, लतीफ बशीर साहब, लतीफ बशीर साहब। वसलाम। अब मैं प्रोटोकॉल से हट के तो पहले मुझे बुलाना चाहिए था बाजू के साथ कामरेड कासिम साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। कोई मसला नहीं, आज कामरेड कासिम साहब ये बड़े कामरेड साहब ने बच्चे से इंशाल्लाह सही मनी के बहुत शुक्रिया। मैं SLF के मजदूर जवाद साहब, जाजब राजा साहब, दिल्ली यूथ फोरम के सदर नुमान शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अब मैं दावत अख्तार दूंगा पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मर्कजी चेयरमैन जनाब अहमद बशीर इनकलाबी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अहमद बशीर साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दो जहानों का खालिक व मालिक है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस ज़ात अक़दस पे जो वजह तहक़ीक़ कायनात है। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और मेरे सामने मौजूद मेहनतकश मजदूर और हर मरतबा फिक्र से तल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, साथियों, कॉमरेड्स, मेरे तालिब इल्म रहनुमा, आपको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन रदीप बशीर साहब, हसन काशिद साहब और बाकी जो इनकी टीम है, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आलमी यौम मजदूर के मौका पर एक खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आज मुझे फख्र हुआ कि मैं बतौर चेयरमैन रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर जिस तंजीम की जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, उस तंजीम ने ऐसे खूबसूरत चेहरों को जन्म दिया जिन्होंने इस माशरे के अंदर रहते हुए लोगों के इस्लाह और अवाल के बारे में सोचा, उनके लिए तदबीर की और उनके लिए जदोजहद कर रहे हैं। मैं आप सबको अपनी तरफ से और तंजीम की तरफ से खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस मौका के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी एक भट्ठे के मजदूर का पोता हूं। मेरा ना बाप जागीरदार था, ना मेरा दादा, ना मेरा नाना, हम कोई सरमायादार लोगों के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं। और आज भी हमारे आबा अजदाद भी भट्ठे के ऊपर
मजदूरी किया करते थे। जिस घर के अंदर मैं आज रह रहा हूँ उसके अंदर लगने वाली ईंटें भी उसी भट्ठे से आई हैं जहां पे मेरा दादा मजदूरी किया करता। तो मैं आज अपने मरहूम दादा समेत दुनिया भर के, रियासत भर के और मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के तमाम मेहनत कशों और मजदूरों को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपकी उन लाजवाल जदोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में आज हम इस काबिल हुए कि हम इसके ऊपर बात कर सकें और गुफ्तगू कर सकें। मैं तारीखी पस मंजर पे जाते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मजदूरों के लिए जो तहरीक का ऐलान हुआ, जो शिकागो के जो मजदूर थे, उससे पहले भी 29 अप्रैल 1865 के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर टैक्स बढ़ने के ऊपर मजदूरों ने हड़ताल की कॉल की, जिसके अंदर तारीख में यह नजर आता है कि 28 लाशें उठी। तो हमें नजर आता है तारीख से कि वहां से मजदूरों ने आवाज उठाई जो आगे चलते चलते पूरी दुनिया के अंदर फैली। तो मैं रियासत जम्मू कश्मीर के उन लोगों और श्रीनगर में कुर्बानियां पेश करने वालों को भी खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपकी वो लगाई हुई शम्मा आज पूरी दुनिया के अंदर रोशन और अपने हकूक की जद्दोजहद के अंदर आपको नजर आ रही है। चूंकि मेरा तल्लुक जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट फेडरेशन से है, बहुत से दोस्तों ने बात की और हम माजी के अंदर भी ये कहते हैं और आज भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद ऐसा प्रोग्राम, ऐसा मिशन और ऐसा मंशूर और दस्तूर लेके आई जो मजदूरों के हकूक की दाई थी। हम सिर्फ ये कहते नहीं कि हमने मजदूरों की बका की जंग लड़नी है, बल्कि हमने अमली मैदान के अंदर ये साबित करके दिखाया। मैं इस वाक़े को यूं कोट करना चाहूंगा कि जब 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमल हो रही थी, तो जब 300 लोगों का ग्रोह डॉक्टर मुबशर हसन के घर में बैठा हुआ था, तो जब साफी ने जुल्फकार अली भुट्टो से पूछा कि बताओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि मजलूम की आवाज, किसान का पसीना और गरीब की तपती हुई छत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और हमें इस बात का फख्र है कि हमने बुनियादी मंशूर इस नारे के साथ रोटी, कपड़ा और मकान, जो एक इंसान की बुनियादी जरूरत है, उसको अपना एक अवलीन नारा बनाते हुए और गरीबों की और मजदूरों और मेहनत कशों की जद्दोजहद का आगाज किया इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में। मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब को इसलिए खराज अकीदत पेश करता हूं कि 5 जनवरी 1975 को उन्होंने लेबर रिफॉर्म करके मजदूरों को यह हक दिया कि आप अपने फैक्ट्रीज के अंदर अपने हल्के मलकियत रखें। अगर मैं गलत नहीं तो 12% हक मजदूरों को दिया गया कि वो अपनी फैक्ट्री के अंदर हक मलकियत रखें, और जागीरदारों और सरमायादारों को यह वाज़ेह पैगाम दिया गया कि आपकी अजारादारी मजीद नहीं चल सकती। इसके साथ साथ 20 लाख से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फकार अली भुट्टो की क़यादत में रोजगार फराहम किया, जो इस बात के एक नस्बुल ऐन था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तबके की नुमाइंदा जमात बन के उभरी। जुल्फकार अली भुट्टो, आपको यूनियन बनाने का मामला हो, जनाब आपके सदर यहां तशरीफ फरमाएं, और मैं आज आपको ये बात बाबर करवा देना चाहता हूं कि ये तोहफा भी आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। आपको एसोसिएशन बनाने का हक, आपको तंजीम बनाने का हक, ताकि आप अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तरीके से कर सकें। ये तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ। मैं इस मौके के ऊपर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, दोस्तों और साथियों, सरकारी और नीम सरकारी इदारों के अंदर 400% तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया गया, और कोई जमात यह साबित नहीं कर सकती कि इस रियासत के अंदर या इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बढ़कर किसी ने बेहतर तरीके से मजदूरों के हकूक की तर्जुमानी की हो। हम सिर्फ नारे मारने के ऊपर यकीन नहीं रखते, हमने अमली इक़दाम करके यह साबित किया कि मजदूरों की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
हमने उसी पॉलिसी को बढ़ाते हुए मजदूरों के लिए मुफ्त प्लाट और लेबर हाउसिंग स्कीम का इजरा किया। यह भी आपको तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलेगी। इसकी मौजूदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी। और अभी रिसेंटली जो हमारी जरी जमीनें थी उसके लिए हम ख्वातीन का कारकुन बिल लेके आए, जिसके अंदर ख्वातीन को जनूबी एशिया का ये एक बहुत बड़ा बिल था जिसको हमने कानून का दर्जा दे दिया और ख्वातीन को यह मौका मुयसर हुआ कि वो जरी जमीनों के अंदर अपनी मजदूरी करके उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उनको लेबर का दर्जा उसके अंदर मिला। ये भी उसको कानून बना के पहली दफा तारीख में हुआ और उनको उसके साथ साथ सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम हुई, जिसके साथ उनको समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिला, शनाख्त मिली और मुफ्त सेहत की सहूलियात मिली। और मैं ये समझता हूँ कि ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वो इनकलाबी इक़दाम था कि जिसे हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बुनियादी मंशूर के ऊपर आज भी कायम। मजदूरों के बच्चों के लिए आम तालीम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में लेबर कोर्ट्स का इजरा। मैं अपने मजदूरों भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि आपको हक के दफा देने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेबर कोर्ट्स का क़याम किया और जो एक बहुत बड़ा इस दुनिया के अंदर एक इनकलाबी इक़दाम था और लेबर कोर्ट्स का क़याम अमल में आया। इसके साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2014 के अंदर एक बेनज़ीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का इजरा किया, जिसके अंदर मजदूरों को 12% हिस्सा देने का ऐलान किया और जिसके अंदर यह था कि जो 50% उस कंपनी का प्रॉफिट था वो मजदूरों को रिटायरमेंट से पहले दिया जाता था और रिटायरमेंट के बाद वसूल कर लिया जाता था। और जो हमारी वजारत निजकारी है जो उसके अंदर रह के ये सारा काम होता था और ये भी एक बहुत बड़ा तारीख के अंदर वो इक़दाम था जिन्होंने मजदूरों को इस मुल्क के अंदर एक बूस्ट दिया। मुझे आज बहुत खुशी हुई अपने मजदूर भाइयों को अपने दरमियान देख के और मैं ये महसूस करता हूँ कि ये आज आपका आलमी दिन और आज के मेहमान खुसूसी भी आप में, मेजबान भी आप हैं, ये आपके साथ ही सारी रौनक। और हम जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की ये तारीफ नहीं कि हकूक के मजदूर हो तो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन नजर आएगी, साथियों के हकूक की बात हो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन नजर आएगी, उस्तादा की या तलब इल्मों की बात हो तो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने हर दौर के अंदर हर तबके के पिछे हुए मजलूम तबके की नुमाइंदगी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया और ऐसे नौजवानों को जन्म दिया और उनकी ऐसी तरबियत की कि वो किसी वक्त भी कहीं भी किसी भी तबके की नुमाइंदगी करने के लिए हम वक्त को शान रहते हैं। और मैं आखिर में दोबारा अपने जो दोस्त अहबाब हैं यूथ के, PSF के, बेंजीन फोरम के रदीप बशीर साहब, हसन काशिद साहब और दीगर जो है बाप जो उनकी टीम के साथ जिन्होंने खूबसूरत प्रोग्राम तश्कील किया, मैं आपको खराज तहसीन और ताज अकीदत भी पेश करता हूँ। और ऐसे दिनों को मनाने की इसलिए ज़रूरत है कि एक जैत जिंदा रहती है, लोग इक़्तिदार के मज़े भी ले लेते हैं। बहुत सी जमातें अपने मंशूरों के अंदर ये तो ज़रूर रखती हैं कि हम फलाने लोगों की हकूक़ की बात करेंगे, लोग इक़्तिदार के अंदर आके भूल जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने आपको चंद वो ऐसे कारनामे गिनाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज रहे और हमने जो अपना बुनियादी फलसफा नजरिया भुट्टोइज्म के ऊपर पैरोकार रहते हुए दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हद तक उसमें कामयाब हुए और मुस्तकबिल करीब के अंदर भी मजदूरों की बका की जंग इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संग इस नारे के साथ हम जारी और सारी रखेंगे। और मैं अपनी तंजीम से भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इसी नए अमल को आगे अपनाते हुए कि मजदूर हमारे भाई हैं और हम उनके साथ और वो हमारे साथ हर मैदान अमल में एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ कर साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं आखिरी बात तुलबा यूनियन के ऊपर करता चलूं कि जैसे पीपल्स पार्टी ने मैंने आपको बताया कि मजदूरों के हकूक की बात की, वैसे ही
तलबा यूनियन के लिए भी ऑर्डिनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कौन कौन सी बात करूं, किस किस कारनामे की बात करूं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पिछे हुए तबके, उस महरूम तबके की नुमाइंदा जमात बन के उभरी थी और हम उम्मीद वासक रखते हैं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपके हकूक की जंग बेहतर अंदाज और बेहतर तरीके से लड़ी जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, इस शेर के साथ कि रोशनी जिसके जिस्म से जन्म लेती है, कि रोशनी जिसके जिस्म से जन्म लेती है, फिर वही मजदूर उजाले को तरसता क्यों है। इल्म, जदोजहद, इनकलाब, जिए भुट्टो, जिए बेनजीर, जिए बिलावल, जिए कश्मीर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं साबिक उम्मीदवार काउंसलर नसीर चौधरी साहब, शोएब राजा साहब, जादव राजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मैं फैसल मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा हमारे साथ ताउन करते हैं। हबीब जालिब ने कहा था, ऐ शरीफ इंसानो, ऐ शरीफ इंसानो, जिंदगी से बेगानो, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, हक है ऐसे जीने में ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचता हूँ ये नादा किस हवा में रहते हैं। और कसीदाए को फिक्र है यही जिनको हाथ में अलम है, तुम उठा न सकोगे कब तक ये खामोशी, चलते फिरते जिंदा लो ये जागीरें, ये मिलने खून तुम्हारा पीती हैं, बैरकों में फौजें किसके बल पे ये जीती हैं। ऐ शरीफ इंसानो, जिंदगी से बेगानो। अब मैं इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब सियासी और समाजी कारकुन जनाब डॉक्टर महमूद हसन साहब को दावत इख्तियार दूंगा कि वो आए और अपने हैरत का इजहार करें। जनाब डॉक्टर महमूद हसन साहब। रब्बी शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरेड रदीफ बशीर एक हमागीर और नापगा रोजगार शख्सियत है। परसों इन्होंने एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया। हमारे एक बड़े तरक्की पसंद और इनकलाबी शायर, मुहक्किक और अदीब, मेरी मुराद अफजल साबरी साहब को, मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इसी हाल के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी एक तकरीब की। और मैं समझता हूं कि समाजी, सियासी और पिछड़े हुए तबकात की नुमाइंदगी करने के लिए कामरेड रदीफ बशीर से बेहतर इस कोठरी में कोई फर्क भी नहीं है। बात यह है कि आज पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि कुर्रे अरज के ऊपर मजदूरों का आलमी यौम मनाया जा रहा है। इससे पहले मेरे बच्चों की तरह हैं आमिर इनकलाबी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की और क्रोनोलॉजिकली तारीखी हिसाब से इन्होंने मजदूरों के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ किया, मुख्तलिफ हुकूमतों ने क्या कुछ किया, इन्होंने बड़ा अच्छा बयान किया। शौकत मुगल कहते हैं मैं मजदूर का बेटा था लेकिन अल्लाह ताला ने को एक सरमायादार बनाया। और आप देख लें कि 102 मजदूरों को इन्होंने नौकरी दी हुई है। तो मैं समझता हूं कि आजिर और अजीर, मजदूर और कारखानादार या जागीरदार यकीनन इस जो मुआशरे हैं इसका जुज़्व लायनफुक है, लेकिन ये अनब्राइटल्ड नहीं होनी चाहिए, बगैर बागों के नहीं होना चाहिए। आजिर को बात डली होनी चाहिए कि जब भी वो कोई गलत काम करे मजदूर के लिए, अजीर के लिए, तो उस वक्त आमिर बेटा उसको को रोकने वाला हो। अब अगर ये शौकत मुगल एक मजदूर के बेटे से अपने आप को एक आजिर ना बनाते तो उन अजीरों को, 102 अजीरों को नौकरी किसने देनी थी?
میں چاہوں گا کہ مجھ سے سچ سننے کی کوشش کریں. یہاں پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق لیفٹ ٹو دی سینٹر ہے، بائیں بازو کے سیاست کرتے رہے ہیں، کچھ ابھی بھی کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ دائیں بازو کی سیاست کی، اور شاید ایک وقت تھا کہ میں اس قسم کی تقریر کو شاید برا سمجھا کرتا تھا. میں اکرم سہیل ہو گئے، مشتاق مناس ہو گئے، شاید ان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، ان کے فلسفے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ادراک ہوا کہ نہ عامر انقلابی غلط ہے، نہ شوکت مغل غلط ہے، نہ میں غلط ہوں. ہمارا راستہ شاید الگ الگ ہے لیکن منزل ایک ہی ہے، اور وہ منزل ظلم، جبر اور استحصال کو ختم کرنا ہے. انہوں نے چی گویرا کو پکڑ لیا، انہوں نے کارل مارکس کو پکڑ لیا، ان میں چند لوگوں نے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پکڑ لیا. میں نے رائٹ کی سیاست کی، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ کامریڈ قاسم کی طرح کسی کے ساتھ ظلم، جبر اور زیادتی نہ ہو. یہ جو مزدور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جیسے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، تو ہمیں انہی احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے. اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ القاسم و حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. یہ جو مزدور بیٹھے ہیں، پٹھان مزدور ہیں یا لوکل مزدور ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں. جب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یا مزدور جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں. بات یہ ساتھیوں کہ کل کی بات ہے کہ یہاں پر یہ جو سینٹری ورکر ایک دو مجھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے پوچھیں اس سسٹم نے، اس سسٹم میں آپ بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب نے مل کر کیا ان کو حقوق ملکیت دیے کہ نہیں دیے؟ یہ مزدور تھے، سینٹری ورکرز تھے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے احسن کام، بڑا کام یہ کرتے ہیں، اور ان کو جتنا بڑا کام کرتے ہیں اس کے برابر مشاہرہ نہیں ملتا. ملنا چاہیے ان کو مشاہرہ سب سے بڑا. یہ جو سینٹری ورکرز ہیں ان کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر صبح کے وقت آپ جائیں گلیوں محلوں میں تو یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آج یوم مئی کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم بشمول باقی مزدوروں کے، باقی کارکنوں کے، جو یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں. بات یہ ساتھیوں کہ حبیب عالم نے کہا تھا دیپ جن کے محلات ہی میں جلیں، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر جلیں، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اپنا ہم پر چلے گا تمہارا فسوں. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اور حبیب جالب کہتے ہیں چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، چاک کامریڈ کیا کہتے ہیں وہ
چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اور پھر حبیب جالب کو ہی لے لیں، جو انہوں نے کہا تھا، فیض احمد فیض کو انہوں نے کہا تھا ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ وقت کے جس کا وعدہ ہے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوہے ازل پہ لکھا ہے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم محروموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اور اہل حکم کے سر اوپر، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کر دے گی، ہم دیکھیں گے۔ جب عرض خدا کے کعبہ سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ ہم اہل صفا مردود حرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے نکال دیا گیا تھا، تو کیا کہتا ہے فیض احمد فیض، کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ بہت باتیں ہو چکی ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے عملی قدم اٹھانا ہے۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کیسے کی جائے گی؟ بات یہ ہے کہ اب میں تھوڑا براڈر پرسپیکٹو کی طرف آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا جبر اور استحصال ہے کہ وہ جو دیہڑی دار مزدور ہے صرف اس کا استحصال نہیں ہو رہا ہے، یہ جو شہید چوک میں بیٹھے ہوئے مزدور ہوتے ہیں صرف ان کا استحصال نہیں ہو رہا، بلکہ یہ فیضان بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں کہ کھرٹا کے، نکیال کے، ناڑ کے وہ والدین جو اپنے بچوں کو کروڑوں روپے لگا کر ڈاکٹر بناتے ہیں، ان کے بچے در در کے دھکے کھا رہے ہیں اس وقت، اور کچھ ایسے بچے جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں وہ مفت آگے پڑھ رہے ہیں مختلف اسپتالوں کے اندر، اور کچھ ایسے بھی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر حکومت نے، وہ چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے مسلم لیگ کی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، انہوں نے منیمم ویج، کم از کم جو تنخواہ ہے مزدور کی وہ 30,000 یا 35,000 رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر جو 5 سال غریب والدین کے پیسوں کے اوپر پڑتا ہے وہ یا بغیر تنخواہ کے نوکری کر رہا ہوتا ہے یا 18 اور 20,000 روپے میں نوکری کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، ہم آج ایک قرارداد پیش کریں، اور اس قرارداد میں کیا ہو، ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اب کامریڈ ردیف بشیر جو ہیں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے ظلم، جبر اور استحصال کو اس خطے سے ختم کر کے رہنا ہے۔ اور مجھے وہ بات کی یاد آ رہی ہے کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ یہ خطہ بانجھ ہے، لیکن کامریڈ قاسم ہم نے اس بانجھ خطے کو فرٹائل خطہ بنانا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر پھول کھلیں۔ اور جیسے کہ احمد ادیب قاسمی نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل
کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، وہ کیسے آئے گی؟ وہ عامر انقلابی آپ کی جدوجہد سے آئے گی، وہ شوکت مغل آپ کی جدوجہد سے آئے گی، وہ کامرین رقیب بشیر وہ آپ کی جدوجہد سے آئے گی، وہ حسن کاشف میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوگا کہیں پہ جس نے بہت اچھی باتیں کی ہوئی ہیں، وہ حسن کاشف آپ کی جدوجہد سے آئے گی۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوجے کمال، کوئی ملول نہ ہو خستہ حال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، یہاں پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ میں جو منتظمین ہیں خصوصی طور پر پی پی پی، پی وائی او، پی ایس ایف اور خصوصی طور پر کامریڈ ردیف بشیر، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے ساتھی ہیں، ہر ایک نے اپنا حصہ ادا کیا، اور حسن کاشر کہ جو پتہ نہیں کدھر چلے گئے، حسن کاشر ہیں یہاں پر، حسن کاشر جو میرے پاس گئے تھے مجھے بلانے کے لیے، میں نے پہلے معذوری کا اظہار کیا، میں نے کہا یار مجھے شاید آپ لوگ برداشت نہ کرو، آپ لیفٹ کی ہو میں رائٹ کا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے، میں نے چیف ویرا کی بات بھی کرنی ہے، میں نے کارل مارکس کی بات بھی کرنی ہے، جیسے کامریڈ قاسم نے مجھے ٹائم دے دیا، کہنے لگے کہ یہ کامریڈ کا بیٹا ہے۔ بات یہ کہ میرے والد مرحوم جو تھے وہ 18 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے داس کیپٹل پڑھ لی تھی، وہ راسخ العقیدہ مسلمان تھے، کامریڈ بشیر کے قاسم کے ساتھ بیٹھتے تھے، مسرت کے ساتھ بیٹھتے تھے، مظہر کے ساتھ بیٹھتے تھے، کامریڈ تھے لیکن راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ تو میں نے انہیں کہا، حسن بشیر سے کہا بعد میں ناراض نہیں ہونا، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرنی ہے، میں نے حضرت عمر فاروق کی بات بھی کرنی ہے، لیکن بہت اچھا ہوا کہ عامر نے بھی بات کر لی، باقی سارے لوگوں نے بھی بات کر لی، تو میرے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ میں نے آپ کی بات کی، آپ نے میری بات کی، اور مزہ تب ہی آتا ہے، حسن تب ہی ہے کہ کسی تقریب کے اندر متضاد خیال رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، مکالمہ یا ڈائلاگ جو ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی بات آپ کے پاس مکالمے کے ذریعے پہنچانی چاہیے، اور آپ کو اپنی بات مکالمے کے ذریعے پہنچانی چاہیے۔ جب ہم ڈنڈا اٹھائیں گے یا وائلنس کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر محمود کے پاس مکالمے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکالمے کی طاقت جو ہے، بات چیت کی طاقت جو ہے، گفتگو کی طاقت جو ہے، اس میں جتنا اثر ہے، جتنا وزن ہے، وہ وائلنس میں نہیں ہے۔ ہم لڑا کرتے تھے آپس میں، غلط تھا، ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائلاگ کریں اور اس سوسائٹی کو حسن کاشف گرداب سے نکالنے کی کوشش کریں، جیسے آپ سب لوگوں نے بات کی ہے۔ آخر میں کہتا ہوں کہ ایک قرارداد پیش کر دی جائے، اور وہ قرارداد یہ ہے، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ طلبہ یونین بحال ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو سارے لوگ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مزدور یونینیں یہاں پہ بننی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری ویگن چلتی ہے، ہائی ایس چلتی ہے، اس کے جو کنڈکٹر ڈرائیور ہیں ان کی یونین بننی چاہیے؟ سارے لوگ ہاتھ کھڑا کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جو 5-10 ہزار روپے پہ کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی یونین بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ آپ ہاتھ کھڑا کریں سارے کے سارے لوگ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مختلف ہوٹلوں میں جو بیرا گیری کرنے والے لوگ ہیں ان کی تنظیم بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ آپ سارے ہاتھ کھڑا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید میرے جیسے بہت سے لوگ، شوکت مغل جیسے بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف عمر ہوگا کہ ہمارے ہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کل ہم سے حق مانگنا شروع کر دیں، لیکن یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری مل جائے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کی انجمن موجود ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا، ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے ان سب کی انجمن سازی ہو اور ان کو ان کا حق مل سکے۔ میں ردیف بشیر، حسن کاشف، باقی جتنے بھی اصحاب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل منیر ہیں، ہر جگہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ ایک اور میرا نوجوان کھڑا ہوا، یہ فصیح، یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور بڑا
हाँ, ये जो आजम मुगल, खालिद मुगल, ज़हीम अब्बास, ये सारे के सारे जो है ना, बल्कि सारे लोग जो बैठे हुए हैं, आप सारे मुस्तहिक हैं तहसीन के। आप लोग यहाँ, मामा इकबाल बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। आज मैं दुआ के लिए हम पैर के नौजवान रहनुमा नईम अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और दुआ कितनी देर बाद 5 मिनट खलो आधा ठीक वेट करे। आमीन।